Well friends, in previous video of electrostatic potential and capacitance, we had discussed about capacitors, basic information about capacitors. The capacitance of the capacitor can be given by the formula C equal to Q upon V. In that case, we had discussed about parallel plate capacitor, and for parallel plate capacitor we had discussed is capacitance C equal to epsilon naught capital A upon D, where epsilon naught is said to be permittivity of vacuum, A equal to surface area of plates, and small d matlab distance between two plates. If any capacitor is given to you, either parallel plate capacitor or any kind of capacitor, then you can use the formula to evaluate its capacitance C equal to Q upon V. Well friends, now in this present video, we will discuss about series and parallel connection of capacitors. Friends, it is a very important part of this particular chapter because in competitive exam or fundamentally in board also, you will find some questions which are based on series and parallel connection of capacitors. Actually, series and parallel connection of resistance you had already discussed in your lower standard. Here we are discussing about series connection and then parallel connection. Series connection of capacitor. फ्रेंड्स, यहां पर ध्यान से समझो, फंडामेंटली सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन के रेफरेंस में यहां पर कंसीडर करो कि तीन कैपेसिटर्स है. दीज आर डिफरेंट कैपेसिटर्स ऑफ डिफरेंट कैपेसिटी. दीज आर थ्री कैपेसिटर्स जिसका कैपेसिटेंस C1, C2 एंड C3 है. ये तीन कैपेसिटर्स को कंसीडर करो कि मैंने यहां पर एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया है और ये बैटरी कंसीडर करो कि V वोल्ट की है. बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है. अगर इस तरीके से तीन कैपेसिटर्स को मैंने कनेक्ट किया है तो फंडामेंटली ये अगर पॉजिटिव टर्मिनल है तो कैपेसिटर का ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव प्लेट्स बनेगी. जो नेगेटिव से अटैच्ड है वो सारी की सारी प्लेट्स नेगेटिव बनेगी. ये कैपेसिटर के दो एंड्स के प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V1, इसके दो एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V2 और इसके दो एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V3 है. याद रखो कि सीरीज कनेक्शन के केस में जब भी कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है तो सीरीज कनेक्शन के केस में हर एक कैपेसिटर के ऊपर डिपॉजिट होने वाला इलेक्ट्रिक चार्ज सेम होता है. यह बात आपके दिमाग में खास होनी चाहिए. यहां पर हम ध्यान से समझेंगे. Here as shown in diagram, if three capacitors are connected end to end in such a way that the potential difference, the electric charge on each plate is equal or same, then such connection is said to be series connection of capacitors. और फ्रेंड्स, सीरीज कनेक्शन के केस में if electric charge, fundamentally you can say that if electric charge deposited on each capacitor is equal, then it is said to be fundamentally series connection. तो फंडामेंटली अगर यहाँ पर मैंने सीरीज कनेक्शन बनाया है
तो सीरीज कनेक्शन में हमारे पास ऑब्वियस है कि यहाँ पर तीनों के ऊपर डिपॉजिट होने वाला इलेक्ट्रिक चार्ज इक्वल होगा, तो इसके ऊपर डिपॉजिट होने वाला चार्ज Q है, इसके ऊपर भी Q है और इसके ऊपर भी Q है। क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त फ्रेंड्स खास ध्यान रखो कि अगर सीरीज कनेक्शन दिया है तो सीरीज कनेक्शन में हर एक कैपेसिटर के ऊपर डिपॉजिट होने वाला इलेक्ट्रिक चार्ज इक्वल होता है, और अगर पैरेलल कनेक्शन दिया है तो पैरेलल कनेक्शन में हर एक कैपेसिटर के ऊपर डिपॉजिट होने वाला पोटेंशियल सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो यहां पर अगर चार्ज सेम है तो C1 इज इक्वल टू Q अपॉन V1, so you can write V1 is equal to Q upon C1. Similarly, C2 is equal to Q upon V2, so V2 is equal to Q upon C2. C3 equal to Q upon V3, so V3 is equal to Q upon C3. फ्रेंड्स, यहां पर से टोटल सप्लाई हुआ है V वोल्ट का और यहां पर डिपॉजिट हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस है V1, V2 एंड V3. So you can say that according to law of conservation of energy, V equal to V1 plus V2 plus V3. V equal to V1 plus V2 plus V3. V1 equal to Q upon C1 plus Q upon C2 plus Q upon C3. So V upon Q is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. V upon Q equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. This is I would like to mention as equation number A. Friends, यहाँ पर कंसीडर करो कि ये तीनों कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कैपेसिटर में अगर ले लेता हूं, अगर तीनों कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कैपेसिटर C इक्विवेलेंट मैंने लिया, उसको अगर मैंने सेम वोल्टेज सप्लाई के साथ कनेक्ट किया, मैंने अगर सेम वोल्टेज सप्लाई मतलब बैटरी के साथ कनेक्ट किया, तो ऑब्वियस है कि यहां पर भी चार्ज उतना ही डिपॉजिट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस V होगा. तो फंडामेंटली यू कैन राइट ओवर हियर C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Q अपॉन V. सो V अपॉन Q इज इक्वल टू 1 अपॉन C इक्विवेलेंट. दिस इज आई वुड लाइक टू मेंशन एज इक्वेशन नंबर B. तो यहां पर आप देख सकते हो कि अगर मैं 1 अपॉन V अपॉन Q के मेरे पास दो इक्वेशंस है, अगर मैं दोनों को कंपेयर कर देता हूं तो फ्रॉम इक्वेशन A एंड B we get 1 upon C equivalent is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. रेजिस्टर के केस में जो पैरेलल कनेक्शन के लिए रिजल्ट मिलता था, वही रिजल्ट यहाँ पर सीरीज कनेक्शन के लिए मिल रहा है. 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3. लैंग्वेज वाइज अगर यहाँ पर बोलने जाए तो वी कैन से दैट इन केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज लेसर देन द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ कैपेसिटर. अगर आपने 2 पिकोफेराडे, 3 पिकोफेराडे एंड 5 पिकोफेराडे के 3 कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट किया है, तो आपको सीरीज में कनेक्ट किया है, तो ऐसे केस में आपको जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस मिलेगा वो स्मॉलेस्ट वैल्यू वाले कैपेसिटर से भी छोटा होगा. सो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ सीरीज कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स. अगर यहाँ पर दो कैपेसिटर है तो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2, और इसी तरीके से अगर n कैपेसिटर्स का पैरेलल कनेक्शन है तो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 अप टू 1 अपॉन Cn तक आप ले जा सकते हो. सो दिस इज अबाउट सीरीज कनेक्शन. सेम वे यहां पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूं पैरेलल कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स. पैरेलल कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स. फ्रेंड्स, पैरेलल कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स का मतलब क्या होता है? हम सबको पता है कि अगर मैं 3 कैपेसिटर्स को इस तरीके से कनेक्ट करता हूं, अगर मैं 3 कैपेसिटर्स को, जैसे ये C1 वैल्यू वाला कैपेसिटर है,
ये C2 वैल्यू वाला कैपेसिटर है और ये सिमिलरली C3 वैल्यू वाला कैपेसिटर है, एंड इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल कनेक्शन विथ वन बैटरी हैविंग वोल्टेज ऑफ V, दिस इज प्लस एंड माइनस। ऑब्वियस है कि जो प्लेट्स पॉजिटिव से अटैच होगी वो सारी पॉजिटिव बनेगी और जो नेगेटिव से अटैच होगी वो नेगेटिव बनेगी। यहां पर पैरेलल कनेक्शन में हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होता है। याद रखो, सीरीज कनेक्शन में हर एक कैपेसिटर के लिए टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज सेम होता है, बट पैरेलल कनेक्शन में हर एक कैपेसिटर के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो ऐसे केस में we can mention or we can define parallel connection of capacitor as shown in diagram, if capacitors are connected in such a way that potential difference across each capacitor is same, then it is said to be parallel connection. Parallel connection of capacitors. It is said to be parallel connection of capacitors. फ्रेंड्स, यहां पर मुझे पैरेलल कनेक्शन को डिस्कस करना है। ऑब्वियस है कि पोटेंशियल सेम है, तो ऑब्वियस है कि यहां पर टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज डिपॉजिटेड ऑन कैपेसिटर भी टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज डिफरेंट होगा। तो इसके ऊपर डिपॉजिटेड चार्ज Q1 है, इसके ऊपर Q2 है और इसके ऊपर Q3 है। तो C1 इज इक्वल टू Q1 अपॉन V, सो Q1 इज इक्वल टू C1V, C2 is equal to Q2 upon V, so Q2 is equal to C2V, and C3 equal to Q3 upon V, so Q3 is equal to C3V। अगर ये बैटरी से सप्लाई होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज Q है, तो टोटल डिपॉजिटेड चार्ज अगर Q है तो Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इट मीन्स दैट Q इक्वल टू C1V प्लस C2V plus C3V. So Q upon V equal to C1 plus C2 plus C3. Q upon V is equal to C1 plus C2 plus C3, and this is I would like to mention as equation number A। अगर मैं इन तीनों कैपेसिटर की जगह पर कोई इक्विवेलेंट कैपेसिटर कनेक्ट कर देता हूं तो हर जगह पर हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए लिखेंगे फॉर C equivalent is equal to Q by V। बट फ्रेंड्स, आप Q by V की वैल्यू देख सकते हो कि C1 प्लस C2 प्लस C3 है, तो इन केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। यहां पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू द हाईएस्ट वैल्यू वाले कैपेसिटेंस से भी बड़ी होती है। तो कहने का मतलब मेरा इतना ही है कि पैरेलल कनेक्शन के लिए C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, एंड सीरीज कनेक्शन के लिए 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 होता है। सो दिस इज डिस्कशन अबाउट सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन। फ्रेंड्स, इसके साथ आपको होमवर्क के लिए एक शीट प्रोवाइड कर रहा हूं जिसमें आपको सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे और ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में सॉल्व करने हैं। थैंक यू वेरी मच।